So, hi students. Today is the second day of the chapter Nutrition in Animals. Yesterday we have discussed the 5 steps of nutrition in animals takes place. Okay. The 5 steps was ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. There was 5 steps takes place in the nutrition of animals. Okay. Now we'll discuss about the mode of taking foods by different animals. As we know, the structure of different organisms, different animals is different. Okay. So the process of taking foods by the animals is different. Okay. The process of taking foods by different animals is different. Okay. So here the some list of some organisms and the process of taking foods from your NCERT books. The first organism is snail. Okay, a snail takes food into their mouth and chew it. Okay, the process of taking foods is chewing. Next is ant. Ant and the process of taking foods is scraping. Okay. Next is eagle. The mode of nutrition in eagle is swallowing. Okay, nigalna. Next is hummingbird, sucking. Hummingbird sucks the nectar of the flower. Okay, nectar of the flower. Nectar is what? Nectar is a sugary liquid present inside the flower. Is known as nectar. Okay, hummingbird and butterfly both sucks the nectar from the flower. Okay. Next is lice. Lice is the organism generally found on the in under the hair or head of the organisms. Okay, so lice used to suck the blood. Okay, lice is also the mode of nutrition in lice is also sucking, and it sucks the blood, not nectar. Okay. Mosquitoes is also sucks blood from the organism. So the mode of nutrition taking foods in mosquito is sucking. Okay. So I hope the mode of taking foods by different animals is clear. Okay. You can collect more animals and you can write the mode of nutrition, mode of taking foods of that animals also. Okay. So next topic is human digestive system. Okay, before human digestive systems, we need to know what is alimentary canal. Okay, so the alimentary canal is long tube-like muscles. Okay, which starts from mouth to the anus. Okay. The alimentary canals is basically 8 to 9 meters long canal. Okay, and it occurs digestion of the food, absorption of the food. Okay, it takes place, the digestion of the food and absorption of the food takes place in alimentary canals. Okay, it is also known as digestive tract. Okay, so what would be the definition of digestive alimentary canals? Alimentary canal is long canals about 8 to 9 meter longs, which in where digestion and absorption of food takes place. It starts from mouth and ends to the anus. Okay. Alimentary canals contains many digestive tract. Okay. So buccal cavity is the first digestive tract. Buccal cavity is also known as mouth. Mouth को ही हम लोग buccal cavity कहते हैं. Okay. तो buccal cavity contain teeth, tongue and saliva. Okay. तो teeth क्या प्रोसेस होता है buccal cavity का? First steps of digestion of food is to take food, ingestion. Okay. तो ingestion में क्या होता है? पहला जो food आता है वो buccal cavity में आता है. ठीक है? buccal cavity में क्या होता है? teeth क्या करता है? foods को tear करता है, तोड़ता है. ठीक है, उसे चबाता है, उसे ग्राइंड करता है. ओके, फूड यानी कि teeth helps to grind the food, to chew the food and to tear the food. Okay.
Next is tongue. Tongue helps the grinded foods. Tongue helps the grinded food mix with saliva. Okay. Saliva is a digestive juice present in mouth which digests the starch found in food. Okay. Saliva is a digestive juice found in buccal cavity which digests the starch present in food. Okay. तो ये आपका सलीवा का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइटली फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज ऑसोफेगस. ऑसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप. ओके, द फूड पाइप इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेक. ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेक and ends to the stomach. Okay, तो ऑसोफेगस क्या होता है? ऑसोफेगस इज अ ट्रैक्ट in which the slightly digested food travels from mouth to stomach along chest. मतलब चेस्ट से होते हुए ये फूड पाइप जो है स्टोमक की ओर जाता है. ओके, तो ऑसोफेगस क्या है? तो ऑसोफेगस में फूड जो है कैसे अंदर जाता है? तो ऑसोफेगस में एक वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है. ऑसोफेगस में एक वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, और ये वेव लाइक मूवमेंट क्यों होता है? ड्यू टू द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द ऑसोफेगस. ठीक है, ये वेव लाइक मूवमेंट से क्या होता है? जो भी स्लाइटली फूड माउथ से जो ऑसोफेगस में आता है, ठीक है, तो ये जो है फूड पुश होता है नीचे की ओर. ठीक है, द फूड पुश्ड downwards or towards the stomach due to the contraction and relaxations of the muscles of the esophagus or due to the wave-like movement of the esophagus. Okay, तो ये क्या होता है कि ये आपका स्टोमक में फूड आ जाता है जो कि स्लाइटली डाइजेस्टेड होता है. ओके, अब देखिए स्टोमक में क्या होता है. Stomach is sac-like muscles in the digestive tract. Okay, तो नेक्स्ट यानी कि थर्ड स्टेप है, थर्ड ट्रैक है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक. थर्ड डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारा स्टोमक. स्टोमक में क्या होता है कि हमारा स्टोमक में तीन सब्सटेंस यानी कि सेल्फ सिक्रेशंस, यानी कि स्टोमक के लाइनिंग पे सेल्फ सिक्रेशंस तीन सब्सटेंसेस होते हैं. दैट इज म्यूकस, HCl एंड डाइजेस्टिव जूस. ओके, म्यूकस क्या करता है? म्यूकस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम इट्स सेल्फ सिक्रेशन ऑफ HCl. ओके, म्यूकस क्या करता है कि स्टोमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है HCl से, यानी कि स्टोमक में जो सेल्फ सिक्रेशन से होता है HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उससे क्या करता है म्यूकस जो है स्टोमक के लाइनिंग को क्लियर करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है ताकि वो एसिडिक ना हो. ओके, नेक्स्ट है हमारा HCl क्या करता है? HCl जो है ये भी सेल्फ सेक्रेशन होता है स्टोमक का. ठीक है, तो HCl क्या करता है कि जितने भी फूड में बैक्टीरिया होते हैं या अदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कुछ भी बैक्टीरियल टाइप का कुछ भी फूड में पाया जाता है, तो उसको क्या करता है HCl जो है मार देता है. ठीक है, और जो HCl क्या करता है स्टोमक में एक मीडियम एसिडिक मीडियम बना देता है. ठीक है, एसिडिक मीडियम बना देता है. HCl kills the bacteria present in the food. Okay, and makes the medium in the stomach acidic. Okay, now that medium helps to break down the proteins found in the stomach. Okay, नेक्स्ट डाइजेस्टिव जूस क्या करता है कि प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देता है. ठीक है, प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देता है. प्रोटीन जो कि फूड में पाया जाता है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देता है. ये तब तोड़ पाता है जब HCl, जब वो पेट का यानी कि स्टोमक का मीडियम जो है एसिडिक होता है, तभी ये डाइजेस्टिव जूस जो है फूड के प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ पाता है. ओके, नाउ the next track is small intestines. From stomach
the partially digested foods comes into small intestine. Small intestine is 7.5 meter long. Okay, 7.5 meter long tube. Okay, in which the complete digestion of food occurs. इसमें complete digestion होता है food का, ठीक है। तो इसमें जो है small intestines receives bile juice from liver, pancreatic juice from pancreas, and self-secreted juice. Okay, self-secreted juice, that is known as intestinal juice. Okay. Now let's discuss about the all digestive juices in the small intestine. Okay. First of all, we would like to know that what is the function of bile juice. Okay. So bile juice comes from liver, is temporarily stored in the gallbladder. Okay. The bile juice secreted in liver is temporarily stored in the gallbladder. Okay. तो बाइल जूस जो है जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो ये क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। यानी कि फैट्स को ये बहुत ही टाइनी ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, ठीक है। इट ब्रेक्स द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड्स इन टाइनी ड्रॉपलेट्स व्हिच फर्दर डाइजेस्टेड बाय पैनक्रियाटिक जूस, जो कि वो फिर से डाइजेस्ट होता है पैनक्रियाटिक जूस में। और पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, उसको जो टाइनी ड्रॉपलेट्स में बाइल जूस ने जो फैट्स को टाइनी ड्रॉपलेट्स में डिवाइड तोड़ दिया है, उस टाइनी ड्रॉपलेट्स को पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, उसको फिर से तोड़ता है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ओके, तो पैनक्रियाटिक जूस किसमें तोड़ता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट इज इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस जो कि सेल्फ क्रिएशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स का, तो इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर और यहाँ पे मैंने लिखा है शुगर और ग्लूकोज में तोड़ता है, और प्रोटीन को ये अमीनो एसिड में तोड़ देता है, ठीक है। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि हमारा फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि बाइल जूस फैट का डाइजेशन किया, फैट को किस टाइनी ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया, पैनक्रियाटिक जूस उस टाइनी ड्रॉपलेट्स को क्या किया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया, ठीक है। और इंटेस्टाइनल जूस क्या कर दिया, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को उसने ग्लूकोज और शुगर में तोड़ दिया, और प्रोटीन को उसने एमिनो एसिड में तोड़ दिया। ओके, सो दिस ये जितने भी है शुगर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, दिस इज द डाइजेस्टेड फूड, दिस इज द डाइजेस्टेड फूड ऑफ द बॉडी। ओके, कौन सा डाइजेस्टेड फूड हो गया, दैट इज शुगर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड। शुगर, ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो है ये डाइजेस्टेड फूड हो गया बॉडी का। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन अराइज किया जाए व्हिच इज द डाइजेस्टेड फूड इनटू द बॉडी, तो आप लिखोगे शुगर, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक्स इनटू शुगर एंड ग्लूकोज, अमीनो एसिड ब्रेक्स फ्रॉम प्रोटीन। ओके, यानी कि प्रोटीन ब्रेक्स इनटू अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक्स इनटू शुगर एंड ग्लूकोज, एंड फैट्स ब्रेक्स इनटू fatty acid and glycerol. Fatty acids and glycerol, sugar, glucose and amino acid is the digested, यानी कि digested food. Okay, digested food. अब क्या होता है, now the next step in small intestine. ये तो आपने देखा कि कैसे फूड्स जो है स्मॉल यानी कि छोटे छोटे भाग में टूट गए, ठीक है, और कैसे वो डाइजेस्टेड फूड बन गए। अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको पहले क्या बताया था, इंजेशन में टेकिंग फूड्स, बगल कैविटी टेकिंग फूड्स कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ऑस्फेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। ओके, अब होगा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का क्या मैंने बताया था, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ passes the digested foods into the blood vessels, ठीक है।
तो स्मॉल ये एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये जितने भी डाइजेस्टेड फूड है दैट इज क्या फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, शुगर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये क्या होता है अब ब्लड वेसल्स में पास होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स में पास होते हैं। द प्रोसेस ऑफ passing the digested foods into blood vessels through the wall of small intestines is known as absorption, okay, is known as absorption। तो absorption का क्या प्रोसेस हो गया, the process of absorbing digested foods into the blood vessels through the intestinal wall is known as absorption, ठीक है, ये तो absorption का प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है एसिमिलेशन का, ओके। तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि the different cells of the body take the digested foods, takes the digested food takes the digested food to get the energy for the growth of the cell and for the repair the damaged part of the cell, okay। तो ये होता है this process is known as assimilation, the process of taking digested foods by the cells to get energy for the growth and to repair the damaged part of the body is known as assimilation। next अब क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड, ये तो डाइजेस्टेड फूड जो है ब्लड वेसल्स में चला गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन इज अराउंड 1.5 मीटर लॉन्ग, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन इज अराउंड 1.5 मीटर लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जितने भी वाटर होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और फिकल मैटर बना देता है, ठीक है, फिकल मैटर बना देता है उस अनडाइजेस्टेड फूड को, जो कि हमारे बॉडी से फिर रिमूव आउट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं थ्रू द एनस, ओके। तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्ब्स द वाटर्स इन द अनडाइजेस्टेड फूड्स and makes the undigested foods into fecal matter. At last that fecal matter removes out from the body through the anus, okay। I hope कि आपको digestive systems of human समझ में आ गया होगा, ठीक है। कल मैं next topic is human teeth and tongue। कल हम ह्यूमन टीथ और टंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर इस पे कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और कल हम ह्यूमन टीथ एंड टंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप एक बार देख लें इसे।